the next question. My next question is that if your age is 12 at present, what will be your age only after 5 years? You are 12 now, and after 5 years, what will be your age? Very nice. I want the answer not in direct way. Write it down, add karke, like 12 plus 5. Like you people are giving me answer 17. Write it down 12 plus 5, like 10 equal to 17. Very nice. Absolutely correct. The correct answer would be 12 plus 5, and which will give you the answer 17. Okay. Now moving on to the third thing. Your age is 12 only at present. What was your age 3 years ago? What was your age 3 years ago? Ago means pehle. ठीक है? What was your age 3 years ago? Very nice. Absolutely correct. I just want अंकिता, अपने लाइन में एक बार देखो आपने क्या लिखा है अंकिता. अनन्या, 17 माइनस 3 क्यों हुआ बेटा? आप 12 के थे ना, तो 12 में से 3 साल पहले मतलब 12 माइनस 3 होगा ना बेटा? Sorry, ma'am, I thought I was 17. Okay. Yes, absolutely correct. Your answers are all correct. It's 12 minus 3, which will give you 9. The basic main thing which I want to tell you that 12 minus 3. अब मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? Your age is Y now. Your age is Y at present. What will be your age after 7 years from now? After 7 years from now, your age is Y. What will be your age after 7 years from now? Very nice. That only I wanted to. It would be Y plus 7 years. It would be Y plus 7 years. Correct. Now, if I want to ask the same question from you, what will be your age 3 years ago? If your present age is Y only, what do you think your age would be 3 years ago? Very nice. Absolutely correct, Ananya. Rahul, Rahul, I think you are mistaken. Kya? I'm asking 3 years ago. I'm not asking 3 years from now. I'm asking that what will be your age before. Okay. It would be Y minus 3 because I'm talking about 3 years ago. Chalo, thank you very much for the correct answers. अब फिर से सुनिएगा. Suppose your age is Y. Your age is Y only. यहाँ सभी लोग Y age पे हैं, ठीक है? Nobody knows कि सबकी correct age क्या है, क्योंकि सबकी अलग अलग है. मेरी कुछ और है, आपकी कुछ और है, शुभम की कुछ और है, अंजलि की कुछ और हो सकती है, अमित की कुछ और हो सकती है. So it means we are not knowing what is our correct age. So हम लोग सभी लोग मान के चल रहे हैं कि हम लोगों की age Y है, ठीक है? Which is not fixed. So now my question is that अगर हमारे किसकी बात करें, सपोज आपका कोई भाई है, आई एम जस्ट टेलिंग यू, जस्ट एज्यूम, ठीक है? सपोज आपका कोई भाई है and he is elder from you. He is elder from you. My also I'm talking about. So he is elder from you and he is twice of your age. He is twice of your age. What do you think? What will be his age? He is twice of your age. He is twice of your age. What do you think? What is his age? Ananya, what you have written, let me know. It's y square. क्या आपने y square लिखा है क्या? अच्छा, क्या लिखा है अनन्या? बोलो मुझे जरा बोलकर बताओ. What you have written? Twice. 2 into y. ये लिखा है आपने? See. Yes, ma'am. Yes, twice meaning बेटा होता है, twice का मतलब होता है
ट्वाइस का मतलब होता है, अगर मैंने ये बोला कि मेरी एज y है, आज की डेट पे मैं y इयर्स की हूँ, ठीक है, सो आई एम y इयर्स ओल्ड, ठीक है। नाउ माई ब्रदर मीन्स मेरा बड़ा भाई है, वो उससे ज्यादा एज होगी, मतलब उसकी एज मुझसे ज्यादा होगी, तो ही इज ट्वाइस ऑफ माई एज। ट्वाइस ऑफ एज का मतलब होता है वो मुझसे डबल है, तो डबल का मतलब होता है बेटा 2 into y, that means twice means 2 into y। remember 2 into y का मतलब only 2, I don't अंजलि आपने भी शायद y plus 2x लिखा है, why you have written 2x I have not understood। Ma'am, now x I होगा, have sent to Y. हाँ ओके, इट्स 2y, इट विल बी 2y बिकॉज मेरी एज पर ही डिपेंडेंट है, तो जब तक मेरी एज मुझे पता नहीं चलेगी तब तक मैं अपने भाई की एज नहीं निकाल सकती। जैसे ही मुझे पता चला मेरी एज 10 है, तो मेरा भाई कितना हो जाएगा 20, बिकॉज जस्ट डबल, ठीक है। अब मुझे बताइएगा एक लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। I am y years ago, now what will be my age 3 years ago, ये आपने अभी अभी जस्ट मुझे बताया था, it was y minus 3, it was y minus 3 only। now my question is कि यही 3 साल पहले जो मेरा भाई था वो मुझसे ट्वाइस था, ठीक है, मुझसे डबल था। मेरे भाई की एज बताइए 3 साल पहले की, फटाफट जल्दी से बताइए। 3 साल पहले मेरा भाई मुझसे डबल था एज में, ठीक है, डबल था मतलब ट्वाइस था। मेरे भाई की एज 3 साल पहले की बताइए फटाफट, देखते हैं कितने लोगों का सही होता है, ठीक है। अगर आपका कॉन्सेप्ट सही होगा, जो आप समझते जा रहे हो, आपका बिल्कुल सही आंसर आएगा। दिमाग लगाइए जरा सा। 3 साल पहले मेरी एज ये थी, दिस इज y माइनस 3, और मेरा भाई जो था वो मुझसे डबल था। माई ब्रदर्स एज, यू हैव टू टेक इट आउट। माई ब्रदर्स एज 3 years ago आई एम टॉकिंग अबाउट, हाँ। He is twice of my age. What do you think the answer could be? 2 into चलो देखते हैं आप लोगों में से किसका आंसर सही है। आई हैव टोल्ड मेरी एज y, 3 साल पहले मेरी एज y माइनस 3, बिकॉज 3 साल पहले इट वुड बी y माइनस 3 ओनली। नाउ माई ब्रदर्स एज, जो कि मुझसे उस समय क्या था, डबल था, तो 2 into y minus 3, so we are talking about 3 years back, so it's 2 into y minus 3, and when we open the bracket, just open the bracket and let me know what would be the answer in this case। just open the bracket and let me know what would be the answer in this case। हाँ आंटी जी मैंने बात की थी, उन्होंने बोला वो 28 को बाहर जा रहे हैं, अच्छा, तो 2 को लौटेंगे, ठीक है। what would be the age now? Open the bracket and let me know। Ma'am, can I tell? Yes, my question was कि मेरी एज y थी, ठीक है, मेरी एज y है प्रेजेंट में अभी की। 3 साल पहले मेरी एज क्या रही होगी, y माइनस 3। नाउ मैंने आपको ये बोला जो मेरा भाई है वो 3 साल पहले मेरे से डबल था, 3 साल पहले मुझसे डबल था, तो 3 साल पहले मतलब y माइनस 3 जो अपने पहले मेरी एज थी उसका डबल था, तो 2 into y माइनस 3। नाउ व्हेन यू विल ओपन इट, इट विल गिव यू 2 into y and 2 into 3, it will give you 6। नाउ मेरा भाई जो था वो 3 साल पहले कितना था, 2y माइनस 6। 3 साल पहले मेरा भाई जो था वो 2y माइनस 6 था, बिल्कुल सही। अब दिमाग लगाइएगा, ठीक है, दिमाग लगाइएगा और मुझे अब बताइएगा तुरंत, ठीक है, दिमाग लगाना और मुझे करेक्ट आंसर ही चाहिए, ठीक है, सोच समझ के आंसर दीजिएगा। मेरा भाई
2y माइनस 6 था आज से 3 साल पहले। अब मुझे बताइए आज उसकी एज कितनी है? दिमाग लगाइए फटाफट, मतलब प्रेजेंट एज उसकी क्या होनी चाहिए? यूज योर माइंड एंड रिप्लाई। आपकी एज 3 साल पहले अगर 10 साल थी तो आज कितनी होगी? 13 होगी। अब आप मुझे सोच के बताइए, सॉल्व करो अनन्या, एकदम सही है, एकदम सही है अनन्या, सॉल्व करो और मुझे बताओ क्या आंसर आएगा। राहुल दिमाग लगाओ, ये गलत है अभी। अंजलि, बेटा सॉल्व करो अंजलि और फिर बताओ क्या आंसर आएगा। अनन्या आपने गलत सॉल्व किया है बेटा, आपने अपेक्षा, हाउ कैन बी आंसर 23? मेरी एज तो अभी हम लोगों को तो करेक्ट एज पता ही नहीं है ना बेटा, अभी सॉल्यूशन नहीं आएगा, हमारा एज तो y के फॉर्म में चल रहा है, तो y के फॉर्म में आंसर आएगा बेटा, बिकॉज इट इज अननोन। brother. यस बेटा, हाँ, आई वॉन्ट द एज ऑफ ब्रदर ओनली, आई वॉन्ट द एज ऑफ ब्रदर ओनली, प्रेजेंट एज। 3 साल पहले की एज मुझे पता है, 3 साल पहले की एज पता है, देखो आप गौर से देखो, 3 साल पहले की एज पता है, मुझे आज की एज चाहिए। आप इसको अपने आप से रिलेट करो, अपने आप से रिलेट करो कि अगर आज आप 10 साल के थे, 3 साल पहले 10 साल के थे, तो आप आज कितने होंगे? 10 में 3 ऐड कर दो तो 13 के हो गए आप आज। वैसे ही मेरा भाई 3 साल पहले कितना था? 2y माइनस 6, आज कितना होगा? नहीं अपेक्षा, दिमाग लगाइए बेटा, हम बार बार एक लाइन रिपीट कर रहे हैं, दिमाग लगाओ पहले और मुझे बताओ आज कितना है वो? It was sent by mistake. अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। अंजलि आर्या एब्सोल्युटली करेक्ट, उसको सही फॉर्म में लिखो अंजलि। चलो आई एम टेलिंग यू नाउ, सी दिस बेटा, ये पूरा कॉन्सेप्ट इसी पर है, पूरा कॉन्सेप्ट एक बार ये समझ में आ जाएगा, पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा इससे रिलेटेड। सी, मेरे भाई की आज की एज कितनी है? 2y माइनस 6। अगर हम बात करें मेरी एज की, सपोज मैं 10 साल की हूँ, 10 साल की थी 3 साल पहले, 3 साल पहले मैं 10 साल की थी, तो 3 साल बाद के बारे में बात हो रही है ना, तो +3 मतलब आज कितनी हो जाऊंगी मैं? 13 की हो जाऊंगी, क्योंकि 3 साल पहले क्योंकि मैं हर साल एज बढ़ती है ना, कम थोड़ी ना होती है, तो +3 हो गया। वैसे मेरा भाई जो था वो 2y माइनस 6 था 3 साल पहले, 3 साल पहले वो 2y माइनस 6 था, मैंने निकाला है जस्ट अभी, और अब 3 साल बाद की बात हो रही है, मतलब +3, तो 2y का 2y, इट इज -6 एंड दिस इज +3, तो -6 और +3 को जब हम सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट इट 2y माइनस 3। कितने लोगों का आंसर 2y माइनस 3 आया था? कितने लोगों का आंसर 2y माइनस 3 था, या -3 + 2y, वो भी सही है। कितने लोगों का आंसर 2y माइनस 3 था? विल यू प्लीज टेल मी? Ma'am, I was doing it. राहुल, ओके, राहुल, अपेक्षा वाज ओनली डूइंग, अंजलि आर्या का सही था, ये मैंने भी देखा था। अनन्या ने भी शुरुआत का लाइन बिल्कुल सही लिखा था, बट उसने सॉल्यूशन करते समय -6 और +3 को ऐड करके -9 लिखा था, जो कि मुझे पता था वो गलती होगी। और अंकिता बिल्कुल सही था, अंकिता का, राहुल का था, अंजलि का था। आई इट मीन्स इतनी बड़ी क्लास में केवल 3 बच्चों का सही था, गलत बात है ना? चलो अब लास्ट टाइम थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइएगा और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? आई विल गिव यू 2 मिनट्स मोर, जिसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे, ठीक है? फटाफट से अब दिमाग लगाइएगा और मुझे फटाफट से बताइए कि हम लोग, मैं जो क्वेश्चन, यस अंजलि वांट टू से समथिंग क्या? No, ma'am. अंजलि आर्या यू, अच्छा ठीक है, ओके चलो। माई एज इज Z, माई एज इज Z, सबकी एज Z है, आपकी भी एज जो है वो Z है, सब लोग अपना एज्यूम कर रहे हैं देयर एज इज Z। नाउ आई वांट एज 4 years ago, I want the age 5 years after, then I want my cousin age, my cousin age was 3 times of my age,
4 years back. So you have to take out my cousin's age. Each 4 years back. Then my cousin's present age. चलो फटाफट से दिमाग लगाओ एंड वी विल हैव द क्विक रिव्यू. एक एक करके हम लोग फिर डिस्कस करेंगे. Okay, ma'am. अब एक एक करके मैच करेंगे बेटा, ठीक है. माई एज वॉज जेड. माई एज वॉज जेड. 4 years ago my age would be z -4, क्योंकि हम 4 साल पहले की बात कर रहे हैं. तो इट इज z -4. नाउ 5 years after, मतलब मेरी एज आज जो प्रेजेंट है उससे 5 साल बाद, मतलब z +5. ठीक है. बिकॉज जब हम एज के बाद की बात करते देन इट वुड बी प्लस, देन हम बिफोर की बात कर रहे होते देन z -4. नाउ माय कजिन्स एज वाज 3 times, जो हम लोग अभी ट्वाइस कर रहे थे उस पुराने क्वेश्चन में. नाउ दिस टाइम आई गेव यू 3 times ऑफ माय एज 4 years बैक. तो मेरी एज 4 years बैक कितनी थी? z -4 थी. तो ले लिया मैंने z -4. ठीक है. देन बोला कि मेरी कजिन की एज जो कि मुझसे 3 times थी, तो इट विल बी दिस 3 into z -4. जब इसको हम सॉल्व करेंगे इट वुड गिव यू 3z and 3 4s are 12. तो 3z -12 because it is 3 times of my age. तो हम केवल z का मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. अगर हम z का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर गलत आएगा बेटा. So in that situation, the answer should be 3 into z. So it will be 3z. 3 into 4, it will give you 10. 3z -12. Now my cousin's present age. Present age. मेरा जो cousin था वो 4 साल पहले ये था. 4 साल पहले ये था. तो 4 साल बाद, क्योंकि हम प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट मतलब आज की बात हो रही है, तो 4 साल बाद की बात हो रही है. इट मीन्स इट वुड बी 3z -12 + 4. तो जब हम +4 करेंगे तो इट वुड गिव यू 3z -12 + 4 विल गिव यू -8. नाउ आई वांट टू सी कितने लोगों का सही था, कितने लोगों का सही था. जस्ट I will request you to check your answer. Rather I'll check it because I have got multiple answer. बेटा आप एक बार चेक करके मुझे बताओ कि आपका सही है कि नहीं, क्योंकि आपके चैट बॉक्स में केवल आपका दिख रहा होगा आंसर. ठीक है. आपके चैट बॉक्स में केवल आपका दिख रहा होगा. मेरे चैट बॉक्स में मल्टीपल आंसर आई हैव गॉट इट बिकॉज स्टूडेंट्स आर सेंडिंग एक एक करके. So I have to search it. Better you tell me whether it is correct or not. But इस बार बहुत सारे बच्चों ने सही लिखा था. I was watching it.
Now you go through with all your answers and let me know किसका किसका पहला वाला सही है. चलो एक एक करके चेक करते हैं. किसका किसका पहला वाला सही था. Write down yes in the chat box. Don't raise your hand. Don't raise your hand. Write yes. किसका किसका पहला सही था. Okay. Write yes. Fine. किसका किसका दूसरा सही था. Z+5. किसका किसका Z+5 सही था. Good. गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट. वेरी नाइस. मतलब आपका सेकंड तक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है. ओके. किसका किसका थर्ड वाला सही था जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स में जा रहा है. दैट इज माय कजन एज. किसका किसका प्रेजेंट एज ऑफ कजन सही था. प्रेजेंट एज ऑफ कजन. गुड. अगर आपने 3 ब्रैकेट के अंदर Z-4 भी लिखा है ना, इट मींस योर आंसर इज करेक्ट. इफ यू हैव रिटन 3 inside the bracket Z-4 only, that is also absolutely correct. Okay, very nice. So 3Z-4. good. चलो किसका लास्ट वाला सही था. किसका लास्ट वाला. क्योंकि अगर देखो सब कुछ शुरुआत से है बेटा. अगर आपका शुरुआत सही है तो आपका लास्ट तक सही जाएगा, और अगर आपकी शुरुआत की हिंटिंग ही गलत है तो आपका लास्ट तक गलत जाएगा. ठीक है. So I can see that very less number of students who are correct last situation पे, है ना. जो बहुत कम बच्चे हैं जिनका लास्ट वाला सिचुएशन सही है. चलो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ. ठीक है. नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस. ये वाला क्वेश्चन एज वाला खत्म हो जाएगा आज ये वाला. इसके बाद एक क्वेश्चन आई विल गिव यू टू ट्राई दैट वन. सो याद रखो किसी भी पर्सन की एज अगर हमें निकालनी है बेटा, किसी भी पर्सन की एज अगर हमें निकालनी है, ठीक है. इफ यू आर हैविंग एनी पर्सन एज 4 साल पहले की, 10 साल पहले की, 20 साल पहले की, तो बेटा हमको पुरानी एज केवल तभी पता लग सकती है जब हमें प्रेजेंट एज पता हो. ठीक है. तो प्रेजेंट एज पता होना बहुत जरूरी है. तो इसलिए अगर किसी क्वेश्चन में हमको प्रेजेंट एज नहीं पता है तो हम उसको पहले मानेंगे कि उसकी प्रेजेंट एज कितनी है, क्योंकि जब तक हम नहीं मानेंगे वी कुड नॉट फाइंड इट आउट द अदर वन. ठीक है. सो लेट अस ट्राई दिस क्वेश्चन. दिस इज कोमेट एज रिलेटेड क्वेश्चन. After 12 years, question number 2 of more challenging, huh? It is saying after 12 years, Manoj will be 3 times as old as he was 4 years ago. ठीक है. Find his present age. सबसे पहले हमको present age, किसके बारे में बात हो रही है. मनोज की बात हो रही है. So let the present age of Manoj be X years. अब मेरे साथ करते चलिए. ठीक है. मतलब हमने सबसे पहले मान लिया कि मनोज की प्रेजेंट एज जो है वो X है. क्वेश्चन ये कह रहा है 12 साल के बाद मनोज जो है वो 3 टाइम्स हो जाएगा जब जितना वो 4 साल था उसके. ठीक है. तो 4 साल पहले की, पहले तो हम बात हो रही है ही वॉज 4 years ago, तो 4 years ago सबसे पहले 4 साल पहले मनोज क्या रहा होगा. नाउ यू थिंक ऑफ इट. मनोज अगर आज X है तो 4 साल पहले मनोज जो था वो X-4 ही रहा होगा, है ना. सबसे पहले हमने मान लिया X-4 हो गया. अब उसके बाद ये बोल रहा है आफ्टर 4 years मनोज विल बी. आफ्टर 4 years मतलब यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि आफ्टर 12 years के बारे में भी बात हो रही है. आफ्टर 12 years तो अभी मनोज कितना है. X है. आफ्टर 12 year मनोज कितना रह जाएगा. X+12. हमें तीनों स्टेटमेंट मिल गए. मनोज, यस, मनोज की प्रेजेंट भी मिल गई, मनोज की 4 साल पहले की भी मिल गई, और मनोज की 12 years की भी के बाद की भी मिल गई. अब हम क्वेश्चन के स्टेटमेंट में उसको अरेंज करेंगे. ATQ मींस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज आफ्टर 12 years मनोज विल बी. तो आफ्टर 12 years ये है, हमने रख दिया.
आफ्टर 12 इयर्स जो मनोज की एज है वो 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स है किसके, उसके 4 साल पहले की एज के। तो 4 साल पहले की एज मैंने ये रख दिया ब्रैकेट के अंदर। दिस स्टेटमेंट इज ओके और नॉट, टेल मी, ये वाला स्टेटमेंट समझ में आया, यस और नो, प्लीज रिप्लाई। यस मैम। ठीक है, देखो आफ्टर 12 इयर्स जो एज है मनोज की वो 3 टाइम्स होगी मनोज की 4 साल पहले की एज की। तो इट वुड बी x + 12 इज इक्वल टू, इसको ओपन करेंगे इट विल गिव यू 3x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इट विल गिव यू -12। x एक तरफ ले लो, नंबर एक तरफ ले लेंगे तो इट वुड बी x, इधर आएगा तो ये हो जाएगा -3x, यहाँ पर -12 है, यहाँ ये जाएगा तो ये -12 एक बार और हो जाएगा, इट वुड गिव यू -24 और ये हो जाएगा -2x। x से x हो गया कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 12। जब सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 24/2 विच विल गिव यू 12 ओनली। मतलब मनोज की जो आज की एज है वो 12 साल है। देखो कितना टेढ़ा मेढ़ा दिया था ना क्वेश्चन, कितना ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा था, हम लोगों ने उसको इसी क्वेश्चन के फॉर्म में सॉल्व कर दिया, हिंट दिया था। और याद रखिए हम कोई भी कंपटीशन लेवल का एग्जाम क्रैक करते हैं, चाहे वो IIT-G का हो, चाहे वो आप IIT-JEE का हो, या आपके पास FIITSE का हो, या किसी भी काइंड का क्वेश्चन हो, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो बेटा, उसमें ये एज रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं। कितना भी टफेस्ट कंपटीशन दे लो, कितना भी टफेस्ट कंपटीशन लेवल, उसमें सबसे ज्यादा आने वाले क्वेश्चन होते हैं एज रिलेटेड क्वेश्चन। इसलिए आज मैंने आपको, शायद आपको लग रहा होगा कि मैम ने आज पूरे क्लास में केवल एक ही क्वेश्चन समझाया, बट अगर आपने ये क्वेश्चन समझ लिया तो आप ये समझ लीजिए कि आपका मेरा वो 40 मिनट सफल हो गया। ठीक है, तो थिंक ऑफ इट कि आज हम लोगों ने क्या किया और क्या समझा। वी हैव नॉट डन सो मच बट आई ट्राई टू रीच यू द स्मॉलेस्ट पॉइंट से लेकर के हायर पॉइंट तक। हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट दिस क्वेश्चन, कैन यू टेल मी? How many of you have understood this question? Can be written, can we write yes in the chat box? Yes, thank you Ananya. Ananya has understood, Rahul got it, okay, Ankita has understood, fine. Okay, what about rest other students? Not understood? What about rest of the students? Please Outside for some work, that is why. beta, but it is not so good na, if you are joining the class, so you should see the class work, no? No ma'am, actually my cousin brother was calling. Acha, okay. Alok Anand said understood. ठीक है. If you have missed some portion, please watch the recording of today and try the questions of RS Agarwal age related question. आप ट्राई करोगे आपको और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा. ठीक है, एटलीस्ट ट्राई 2-3 क्वेश्चंस ओनली, जितना आपको लगे ट्राई ओनली 2-3 क्वेश्चंस, एग्जांपल्स ही कर लो जो भी आपको लगे, बट आज कम से कम 2-3 क्वेश्चन से करो रिलेटेड. अगर आपको समझ में आने लग गया तो समझ जाइए आपको एज रिलेटेड क्वेश्चन बनने लगे. और अगर नहीं समझ में, क्योंकि 10th क्लास में 9th क्लास में भी यही क्वेश्चन आएंगे. दिस इज ऑल रिलेटेड टू दिस ओनली, एज रिलेटेड क्वेश्चन. बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है बेटा, जो कि हर क्लास में आता है. हर क्लास में इसलिए जोर दिया जाता है इस पे क्योंकि इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम. ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन. And tomorrow it means not tomorrow we will try to finish the whole comet because अब 2-3 क्वेश्चन ही बचे हुए हैं. लड्डू वाला एक है और एक एज वाला क्वेश्चन है, बाकी everything we have done it. Okay, thank you and Jai Hind all of you. जय हिंद मैम. Thank you and Jai Hind ma'am. बेटा, जय Thank हिंद, you, जय हिंद बेटा, teacher. जय हिंद everyone.